हेलो डीएलगे फैमिली ना wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अनदेखा A1 का एग्ज़ाम टिप्स के साथ और ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 और अनसीन एग्ज़ाम्स इस चैनल पर मौजूद हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं अगर जल्दी ही आपका A1 का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका पैटर्न क्या होगा? गोएथे इंस्टीट्यूट में जो A1 एग्ज़ाम होता है स्टार्ट डॉइच 1 वो los geht's। Goethe-Zertifikat A1 के लिए hören में आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है और ये इसकी डिटेल्स हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अगर अब तक आपने अपने पास कॉपी और पेंसिल नहीं रखी थी तो उसको लेकर आ जाएं क्योंकि hören आप अकेले खुद से सॉल्व करेंगे और चेक करके मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। Hören. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Wo können Sie sich anmelden? In Zimmer 16, in Zimmer 116 oder in Zimmer 161. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Beispiel. Ach, Entschuldigung, wo finde ich die Anmeldung für die Deutschkurse? Ist das nicht in Zimmer 116? Nein, das stimmt nicht. Die Zimmernummer ist 161. Also 161. Vielen Dank. Eins. Was kostet der Mantel? ओवरकोट की क्या कीमत है? 50 Euro, 65 Euro oder 60 Euro 50. Eins. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Zwei. Wie muss die Frau gehen? Geradeaus und links, geradeaus und rechts oder immer geradeaus. Zwei. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links.
Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Drei. Wann fährt der Zug nach München? Um 16:30 Uhr, um 17:30 Uhr oder um 19 Uhr? Drei. Entschuldigung, Ja, bitte. wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um 4:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Entschuldigung, Ja, bitte. wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um 4:30. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Vier. Wann gehen Anja und Yvonne ins Kino? Am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Vier. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend? Oh, Freitagabend kann ich nicht. Da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid. Am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima. Das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend? Oh, Freitagabend kann ich nicht. Da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid. Am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima. Das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Fünf. Was bestellt die Frau im Restaurant? Fleisch, Suppe, Gemüse. Fünf. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft bitte.
6. Wohin fahren die Freunde zusammen in den Urlaub? Ans Meer, nach Berlin oder nach München? Sechs. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jede Durchsage einmal. 7. Familie Schmidt soll schnell in die Halle A kommen. Sieben. Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A. Acht. Der Zug nach Frankfurt fährt heute um 13:20 Uhr. 8. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13:20 Uhr, sondern um 14:20 Uhr. Ich wiederhole. Der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Neun. Das Kaufhaus ist nur noch kurze Zeit geöffnet. 9. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Zehn. Der kleine Junge sucht seine Eltern. 10. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist 6 Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen.
Hören. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 11. Was soll die Frau tun? Sie soll Essen kaufen, sie soll in die Firma kommen oder sie soll mit dem Mann telefonieren. 11. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Zwölf. Wie ist die Telefonnummer? 069 48 32 15 069 48 23 15 oder 069 84 32 14. 12. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15. Dreizehn. Wann kann die Frau einen Termin haben? Am Mittwoch? Am Donnerstag? Am Freitag? 13. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Vierzehn. Wie lange will der Mann noch warten? Eine halbe Stunde? Eine Viertelstunde? Oder bis 7:45? 14. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an.
Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt 7:45. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch 15 Minuten. Dann fängt der Film an. Fünfzehn. Wo will Pauline ihre Freundin treffen? Im Kino, in ihrer Wohnung oder beim Arzt? Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Hallo Claudia, hier ist Pauline. Du Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? तो होरन आपको कैसी लगी? क्या आपको मुश्किल तो नहीं लगी? अगर मुश्किल लगी है तो मैं अपनी फुल आइंस की प्लेलिस्ट लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल के साथ डिफरेंट पार्ट्स जो एग्ज़ाम्स के होते हैं उनको डिस्कस किया है। डिफरेंट उसमें वर्ड्स हैं, डिफरेंट टास्क हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। ये हैं जी सभी टास्क के आंसर्स, और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके इसमें कितने मार्क्स आए। hören के बाद बारी आती है लेज़न की, जिसके लिए एग्ज़ाम में हमें 25 मिनट का टाइम दिया जाता है। ये उसकी डिटेल्स हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। Lesen Teil 1. Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? इसमें हमने करना क्या है कि मैं हर एक पार्ट का पहला टास्क सॉल्व करके आपके साथ डिस्कस करके बताऊंगी कि इस तरह से करना है। बाकी सभी जो टास्क हैं उनके लिए 10-10 सेकंड के लिए आपकी स्लाइड रहेगी। आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं कॉपी और पेंसिल लेकर साथ में, और एंड पे देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। इससे ये है कि आपकी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी कि आपको ऑलरेडी कितना आता है इस एग्ज़ाम के बारे में ना। तो पहला टास्क है रोबर्टो विल यास्मीन noch anrufen। रोबर्टो चाहता है यास्मीन को कॉल करना। तो ये रिश्तिश है या फाल्श, ये हम इस जो ईमेल होगी उसको पढ़कर देखेंगे। Hallo Jasmin, ich habe morgen frei, कल मैं फ्री हूँ। Ich kann schon am Mittag nach Berlin kommen, मैं ऑलरेडी दोपहर तक बर्लिन आ सकता हूँ। Und nicht erst abends spät, यानी पहले इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि ये शाम को आएगा रोबर्टो, लेकिन अब चूँकि कल उसका फ्री है तो वो कह रहा है कि मैं दोपहर में ही बर्लिन आ जाता हूँ और शाम में नहीं आऊँगा। Kannst du mich abholen? क्या तुम मुझे पिक कर सकती हो? Mein Zug kommt um 12:30 an, मेरी ट्रेन पहुँचेगी 12:30 बजे। Am besten treffen wir uns vor dem Bahnhof, बेस्ट ये रहेगा कि हम मिलते हैं रेलवे स्टेशन के सामने, फोआना। Dann warte ich auf dich, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। Ist das okay für dich? क्या ये तुम्हारे लिए ओके है? Schreib mir bitte schnell, मुझे लिखो प्लीज़ जल्दी। Oder ruf mich an, यहाँ पर भी इम्पेरेटिव का इस्तेमाल हुआ है, या फिर मुझे फ़ोन करो। ये दोनों इम्पेरेटिव्स इस्तेमाल हुए हैं कि या मुझे जल्दी लिखो या फिर फ़ोन करो। बिस मॉर्गन टिल टुमारो ना, कल तक। इश फ्रॉय मिश, मैं खुश हूँ।
तो ये देख लेते हैं कि पहला था कि रोबर्टो चाहता है यास्मीन को कॉल करना। तो ये आपको क्या लग रहा है इस ईमेल को पढ़कर कि ये रिश्तिश है या फाल्श? सोचें तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि मुझे लिखो या फिर कॉल करो। तो रॉबर्टो चाहता है कि यास्मीन उसको कॉल करे, ना कि वो यास्मीन को। तो फिर ये जो फर्स्ट टास्क है ये हो जाता है फाल्श। बाकी इस टास्क ये वाली सेकंड टास्क है और इससे रिलेटेड आगे आने वाली 3 टास्क आपने खुद से सॉल्व करनी है। हम फिर मिलते हैं लेजन टाइल स्वाई की पहली टास्क में। Lesen Teil 2. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Wo finden Sie Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. तो इसमें क्या है कि 6 से 10 तक टास्क हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट पढ़ें और देखें कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो कहाँ से मिलेगी। तो इसमें आमतौर पर आपको क्लाइने अनसाइगे दिए जाते हैं, छोटे छोटे एड्स, जिनको आपने देखकर मार्क करना है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पर मिलेगी। ओके जी, 6 है Sie suchen ein billiges Fahrrad. आप ढूंढ रहे हैं एक सस्ती साइकिल। ये इम्पॉर्टेंट है कि सस्ती होनी चाहिए और साइकिल होनी चाहिए, कुछ और आपको नहीं चाहिए। तो एड्स देख लेते हैं। Fahrrad, rot, 2 Jahre alt. ठीक है, साइकिल है, लाल रंग की है और 2 साल की है, यानी 2 साल पुरानी है। ट्राई कहेंगे, अब ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, मुझे नहीं इनका पता। Für nur 60 Euro, सिर्फ 60 यूरो की। Zu verkaufen, बेचने के लिए। ठीक है जी, दूसरा ऐड देख लेते हैं। Verkaufe, billigen, Motorola, तो बेच रहा हूँ या रही हूँ क्या सस्ती। अब मोटोरोला आपको अगर ना पता हो तो ये मोटोराड होता है, यानी कि बाइक। तो सस्ती बाइक्स, कीमत क्या है जी? 200 Euro। ठीक है। Außerdem Fahrradtaschen, इसके अलावा साइकिल के बैग्स ना। उसके बाद वो क्या है जी? 30 Euro के हैं। 10 स्टुक के एक पीस उसका जो है 30 यूरो का होगा, साइकिल के बैग्स। अब ये देखें, यहाँ पर फागाट है, यहाँ भी फागाट है, यहाँ पे मोटोरोला है जो कि मोटोगाट होती है एक्चुअली, और यहाँ पर फागाट है लेकिन उसके साथ ठाशे लगा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि आ ठीक है या फिर बे? और हाँ, एक और चीज़ याद आई कि यहाँ पर बिलिश या बिलिगस लगा हुआ है और यहाँ पर भी बिलिगन। तो होता क्या है कि जब हम वर्ड्स मैच करते हैं कि यहाँ पर भी बिलिश है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फागाट है, यहाँ पर भी है, तो अक्सर इस तरह के एड्स में होता क्या है कि वो हमें ट्रिक करते हैं मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों के साथ कि आपको क्या अगर सही समझ ना आए टास्क की तो आप गलत आंसर मार्क कर सकते हैं, तो आपके नंबर इस तरह से कट सकते हैं। इसलिए बहुत गौर से, ध्यान से समझ के हमें इन एड्स को पढ़ना होता है। तो इसका सही आंसर आ है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ागाट मिल रही है जो कि सिर्फ 60 Euro में मिल रही है। तो करना क्या है अब आपने जो नेक्स्ट 4 टास्क हैं टाइल्स वाई के, उनको खुद से सॉल्व करके इस पार्ट के एंड में आंसर्स दिए होंगे, उनके साथ आपने मैच करके चेक करने हैं कि कितने आपके सही हुए। Lesen Teil 3.
Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. तो टास्क हमारी क्या है जी? Am Mittwochabend können Sie bis 23 Uhr im Garten sitzen. कि बुध की शाम को आप रात 11 बजे तक गार्डन में बैठ सकते हैं। तो नोटिस क्या लगा है जी? Im Restaurant, रेस्टोरेंट में नोटिस है जी। Essen und trinken im Garten, खाना और पीना गार्डन में। Wochentags bis 22 Uhr, के वीकडेज में सिर्फ 10 बजे तक। और Freitags und Samstags, जुम्मों को और हफ्तों को वो होगा सिर्फ 11 बजे तक। Das Restaurant schließt 24 Uhr, वैसे तो रेस्टोरेंट की जो क्लोजिंग टाइम है वो रात के 12 बजे है। तो जो मिटवॉक आबेंट को रात को इन्होंने कहा हुआ है कि आप 23 बजे यानी 11 बजे बैठ सकते हैं गार्डन में, तो हम क्या बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर वोखन टाग्स लिखा हुआ है सिर्फ 10 बजे तक, तो इसका मतलब है फिर ये फाल्श है। अब आप अगले वाले 4 करें और आंसर्स अपने मैच करके देखें। तो बाकी जो टास्क थे वो आपको कैसे लगे? क्या आपको आसान लगे या मुश्किल लगे? क्या आपने सारा पेपर हल कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप अपने आंसर्स चेक कर लें। तो ये हैं जी आंसर्स। हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके लेज़न और ह्योगन दोनों पार्ट्स में कैसे आंसर्स आए। गोइथे सर्टिफिकेट A1 की श्राइबन के लिए हमें तकरीबन 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें हमने 2 टास्क को करना होता है, एक फॉर्मूला फिल करना होता है और एक ईमेल या लेटर लिखना होता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो स्टूडेंट्स को लगता है वो यही ईमेल या लेटर लिखना होता है। फॉर्मूला अगर आपको अच्छी ग्रिप आ जाए, थोड़ी नॉलेज हो जाए, तो आप आसानी से 5 में से 5 नंबर ले सकते हैं। तो ये है जी इस एग्ज़ाम का फॉर्म जो कि आपने फ़िल करना है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अब आप वैसे ही आपने ह्योगन और लेज़न खुद से सॉल्व किया है, तो इसको भी लगे हाथ आप सॉल्व करके देखें और चेक करें कि कितने मार्क्स आएंगे। तो या अभी आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप इसको पढ़ लें। तो क्या आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है? अगर नहीं किया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक करके उसको कर सकते हैं हल, क्योंकि अभी आप उसके आंसर्स देखने लगे हैं जो कि ये हैं। ओके जी, ये देख लेते हैं कि हमने आप किसको लेटर या ईमेल लिखनी है। जी möchten im Sommer in München Urlaub machen। आप चाहते हैं समर में, गर्मियों में म्यूनिख में छुट्टियां करना, छुट्टियां गुजारना। schreiben Sie an die Touristeninformation, तो आप लिखें टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वालों को। यहाँ पर आपको ये बात बता दूँ कि जब लिखा होता है ना schreiben Sie an, तो इसका मतलब है को लिखें। अब किसको लिखना है यहाँ पर आपने गौर से देखना है और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, कि आपने एक बंदे को लिखना है या ज़्यादा बंदों को। आपको पता है ना जर्मन लैंग्वेज में बेसिक 3 तरह के लेटर्स आते हैं A1 एग्ज़ाम में। एक तो ये है कि जी वाला फॉर्मल, एक है डू वाला इनफॉर्मल और एक है ज़्यादा लोगों को लिखने वाला। तो उसको आप या जो यू ऑल वाला है उसके मुताबिक लिखना होता है। अगर ये बेसिक क्राइटेरिया आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आपके लेटर में 0 नंबर आ सकते हैं।
तो लेटर को यहाँ से देखना कि वो किसको लिखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये एक फॉर्मल लेटर है, तो हम इसको फ्याजी के साथ लिखेंगे। 3 पॉइंट्स क्या हैं जिन पर हमने लिखना है? Warum schreiben Sie? Günstige Hotels, Sehenswürdigkeiten, आप क्यों लिख रहे हैं? सस्ते होटल्स, और जो देखने के मुकामात हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, वो क्या हैं? ठीक है जी, उसके बाद ये नीचे होता है, हमेशा इसका आपने ध्यान रखना होता है, schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze, हर एक पॉइंट पर 1 से 2 जुमले लिखें। auf den Antwortbogen, ठीक है जी, आंसरिंग शीट पर लिखना है। और कितने वर्ड्स होने चाहिए? तकरीबन 30 Wörter, 30 लफ्ज़ों का लेटर होना चाहिए। Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß, ठीक है जी, कह रहे हैं कि जो आपकी बिगिनिंग है लेटर की और जो ग्रीटिंग है वो भी आपने लिखना है। तो इन दोनों को छोड़कर जो बॉडी है लेटर की, जिस पर आपने इन तीनों पॉइंट्स पर लिखना है, उसके टोटल 30 वर्ड्स होने चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स पर लिखने के आपको मिलेंगे 9 नंबर, और जो बिगिनिंग और एंडिंग है उसका मिलेगा आपको 1 नंबर। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके साथ शेयर किया है एक सैम्पल आंसर। आप अगर अपना खुद से लेटर लिखना चाहते हैं तो उसको भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर शेयर करें और दूसरों को दिखाएं कि आप इस लेटर को किस तरह से लिखेंगे। तो ये जस्ट एक आंसर है। sehr geehrte Damen und Herren, फॉर्मल लेटर को आप हमेशा इस तरह शुरू करते हैं अगर आपको ना पता हो कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। कॉमा के बाद हमेशा आपने छोटे लेटर से स्टार्ट करना होता है। अगर वो जी ना हो तो Ich heiße Ria Adarsh und wohne in Berlin. Ich möchte im Sommer in München Urlaub machen. तो देखें फर्स्ट लाइन तो बिल्कुल मैंने, जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि लेटर को ही चेंज करके आप उसको लिख सकते हैं, और लेटर की लाइन से आप काफ़ी मदद ले सकते हो, थोड़ा चीटिंग कर सकते हो, देखकर हेल्प ले सकते हो कि किस तरह से आप उसको चेंज करके अपने मुताबिक लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने A1 लेवल के मुताबिक तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा है, लेकिन अगर आप इस लाइन को एज इट इज़ याद कर लोगे तो कोई भी फॉर्मल लेटर में रिक्वेस्ट करने वाली चीज़ होगी ना, तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आप किस तरह से उसको मॉडिफाई करके कह सकते हो। Es wäre sehr nett von Ihnen, बहुत ही अच्छा होगा आपकी तरफ से, wenn Sie mir günstige Hotels empfehlen könnten, अगर आप मुझे सस्ते होटल्स रेकमेंड कर पाएँ तो देखें अगर यहाँ पर आप इसको काट देंगे, जैसे कि अगर इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी और चीज़ है, आइने लिस्ट है, कुछ भी और चीज़ है, तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपने कहना है कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie mir die Informationen über Hotels oder Informationen über Berlin geben könnten। इस तरह करके आप इसको मॉडिफाई करके इस लाइन को तो पक्का रट लें, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है Sehenswürdigkeiten, उसको ऐसे आप लिख सकते हो Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in München, कि कौन कौन सी देखने की जगह हैं म्यूनशन में। ठीक है, उसके बाद एंडिंग आप कैसे करोगे? Ich bedanke mich im Voraus und warte auf Ihre Antwort। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव व्यापन आते हों तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप उसको यूज़ करो, और अगर वर्ब और प्रपोजिशन का कॉम्बिनेशन आता हो तो फिर भी क्या बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप लेटर में यूज़ करोगे, इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे बाकी सभी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो देखेंगे कि अच्छा इस स्टूडेंट को रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी आते हैं, अच्छा इसको ब्रेकेबल वर्ब्स भी आते हैं, इसको लिंकिंग वर्ड्स भी आते हैं, तो जॉइनिंग वर्ड्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर आपको रिलेटिव ज़ेड से भी आते हों तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लेटर में हो सकता है आपको फुल मार्क्स मिले या कुछ थोड़े बहुत 0.5 या इस तरह कम हो ना। बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने ये सभी चीज़ों का ध्यान रख के लेटर लिखा हो तो आपके फुल मार्क्स या बहुत ही अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने भी आइंस का लेटर लिखा था तो मेरे भी ऑलमोस्ट 14.93 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 15 ना। तो बहुत सारे चांसेस हैं अगर आप ये सभी रूल्स को फॉलो करके लिखो तो अच्छे मार्क्स आएंगे। एंडिंग आप फॉर्मल लेटर की हमेशा इन 3 लफ्ज़ों के साथ लिखते हो, और ये 3 वर्ड्स आप एज इट इज़ याद कर सकते हो एंडिंग्स का ना। वैसे तो ये हायर लेवल की चीज़ है जो एंडिंग्स याद रखना, लेकिन आप इन तीनों वर्ड्स को याद करके फॉर्मल लेटर को एंड कर सकते हो। और जब आपने अपना नाम लिखना होता है तो अपना फ़ोआ और नाख नाम एंड पर फॉर्मल लेटर में लिख देना होता है।
तो जिस बुक से मैंने ये एग्ज़ाम लिया था वहाँ पर हमें lösungsbeispiel भी करके 2 दिए हुए थे। आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। अगर इससे मिलता जुलता एग्ज़ाम आपको लेटर में आ जाए तो आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से उसको लिख सकते हो। Goethe-Zertifikat की Sprechen के लिए हमें मिलते हैं 15 मिनट और इसके 3 पार्ट्स होते हैं और 4 लोग मिलकर इस एग्ज़ाम को देते हैं। और Teil 1 में हमारे पास होता है sich vorstellen, अपना इंट्रोडक्शन हमने करवाना होता है। तारुफ, तो ये सभी वर्ड्स होते हैं और आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इन सारे सेंटेंसेस की शक्ल में रट्टा लगाकर चले जाते हैं और वहाँ जाकर बोल देते हैं। तो हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Ich heiße Ria Adarsh, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Nepal. Ich wohne in Kathmandu. Ich kann Hindi, Englisch und ein bisschen Deutsch sprechen. Meine Muttersprache ist Nepali. Ich bin Bankkauffrau von Beruf. Meine Hobbys sind Kochen und ins Kino gehen. Sprechen Teil 2 में हमने Informationen bitten und Informationen geben. रिक्वेस्ट करनी होती है, इन्फॉर्मेशन पूछनी होती है और उस इन्फॉर्मेशन का जवाब देना होता है। इसमें आपको आम तौर पर क्वेश्चंस बनाने होते हैं। वो वे फ्रागन भी हो सकते हैं और या नाइन फ्रागन भी। तो इस एग्ज़ाम में हमें थेमा आया einkaufen और आप पर सोचें वर्ड आ गया है मार्क्ट, जो कि होता है मार्केट। तो इस पर आप क्या सवाल बनाएंगे ये देख लेते हैं। जैसे कि वो इस्ट मार्क्ट, मार्केट कहाँ है? अगर आपको आर्टिकल याद हो तो आर्टिकल भी बोल सकते हैं, वो इस्ट der मार्क्ट। और अगर आपने ज़्यादा एफिशिएंसी झाड़नी है तो आप कह सकते हैं वो इस्ट der सुपरमार्केट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बाय द वे ये सवाल बनाने के 2 नंबर मिल जाएंगे अगर आपने ऐसा सवाल बनाया। तो आंसर किस तरह से आपका स्पीकिंग पार्टनर कर सकता है ये देख लेते हैं। Zum Beispiel in der Elisabethstraße oder hier links. नेक्स्ट हमारा थेमा है जी फ्राइसाइट और वर्ड आया है लीबलिंग्सस्पॉट, जिसका मतलब है फेवरेट खेल। तो इसका क्वेश्चन आप ऐसे पूछ सकते हैं, वास इस्ट या लीबलिंग्सस्पॉट। कोई भी लीबलिंग्स के साथ चीज़ आ जाएगी तो आप इस तरह ही उसका सवाल बनाकर पूछ सकते हैं, जैसे कि लीबलिंग्स एसन, लीबलिंग्स गेट्रैंक und so weiter। तो इसका आंसर आप उसके मुताबिक करेंगे। जैसे यहाँ पर फेवरेट खेल है तो आप कहेंगे ich spiele gerne Tennis oder ich spiele gerne Fußball। Sprechen Teil 3 में हमने Bitten formulieren und darauf reagieren, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट बनानी होती हैं और उन पर रिएक्ट भी करना होता है। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, या आप सिंपल जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं रिक्वेस्ट बनाने वाले उनसे आप बना सकते हो, या फिर मोडाल व्यापन को इस्तेमाल करके भी इसमें आप रिक्वेस्ट बनाकर अपने स्पीकिंग पार्टनर से पूछ सकते हैं। इस पार्ट में हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और उन पर हमने रिक्वेस्ट बनानी होती हैं। रिक्वेस्ट आप इम्पेरेटिव्स के साथ भी बना सकते हो और मोडाल व्यापन को इस्तेमाल करके भी। तो इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 स्टेम्स आए हैं तो उसको हम किस तरह से रिक्वेस्ट में बदलेंगे। जैसे कि ich möchte Brief senden, kaufen Sie mir bitte 3 Briefmarken। सिंपल ब्रीफमार्कन आप कहेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ों के नंबर्स दिए हों जैसे कि 2 Zitronen oder 3 Äpfel, 2 Bananen, 3 Briefmarken, कोई भी अगर चीज़ों के नंबर्स हैं ना तो अच्छा रहेगा अगर आप नंबर्स भी दिखाएं ताकि आपको वो देखें कि अच्छा इनको नंबर्स बोलने भी आते हैं। तो इसका आंसर आप किसी तरह से भी आपका स्पीकिंग पार्टनर दे सकता है, जैसे कि या sicher, हाँ ज़रूर, या फिर या warum nicht, हाँ क्यों नहीं। तो ये आपने कहा था कि मैं ख़त भेजना चाहती हूँ, मेरे लिए प्लीज़ ख़रीदें 3 स्टैम्प्स ना। ये बिटे है, यहाँ पे आप इस तरह डिफरेंट जो वर्ब्स हैं वो लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि geben Sie mir bitte 3 Briefmarken oder bringen Sie mir bitte 3 Briefmarken। तो सभी चीज़ों के आप मुख्तलिफ वर्ब्स लगाकर घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए।
इसी तरह अगर एक सीडी आ जाए तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट बना सकते हैं, Ich möchte Musik hören. Kannst du mir bitte eine CD geben? यहाँ पर मैंने एक मोडाल वर्ब के साथ यूज़ करके रिक्वेस्ट बनाई है, तो इसमें पैटर्न ज़रा सा चेंज हो जाता है। जब हम रिक्वेस्ट डायरेक्ट इम्पेरेटिव्स के साथ बनाते हैं उसमें वर्ब्स शुरू में जाते हैं, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ हो तो फिर मॉडल वर्ब शुरू में आता है और एंड में मेन वर्ब अपनी असली शक्ल में जाता है। तो इसको आप फॉर्मल भी बना सकते हैं, जैसे कि können Sie mir bitte eine CD geben? तो मैं म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, क्या आप या क्या तुम मुझे एक सीडी दोगे या देंगे? ठीक है, तो आंसर इस तरह से हो सकता है, Hier bitte oder Ich habe keine CD. मेरे पास कोई सीडी नहीं है। इस वीडियो में डिस्कस किया जाने वाला एग्ज़ाम लिया गया था फिट fürs कोइथे सर्टिफिकेट A1 से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप 2 और फुल एग्ज़ाम वीडियोस जिसमें हर एक पार्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है देखना चाहते हैं तो आप Übungssatz 1 और 2 भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ 2 और अनसीन एग्ज़ाम वीडियोस भी ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड की गई हैं। जस्ट आपने प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है A1 कोइथे एग्ज़ाम्स के नाम से, सभी आपको उसमें वीडियोस मिल जाएंगी, लेटर्स से लेकर स्पीकिंग से लेकर कि किस तरह से आप सारे पार्ट्स को अच्छे से टैकल, अच्छे से हल बल्कि कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने ओवरव्यू बताया है A1 के एग्ज़ाम का कि कितने इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में क्या क्या होता है, आंसरिंग शीट को किस तरह से आपने फिल करना है, अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको कैसे आपने सही करना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं। तो उसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपका जल्दी ही A1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको विश करती हूँ एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जिसको जर्मन में कहेंगे फील ग्लुक। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ जिनका जल्दी ही A1 एग्ज़ाम होने वाला है उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।